बेटर, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, फाइन। So I will do this problem again so that you have this problem also in your recording. I will erase first. सर शुद्ध हिंदी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप कैसे भी Mhm. समझाइए, आप कैसे भी समझाइए। Yes. Now, mm, your first problem is differentiate 3 power root x with respect to x. So we will take y equal to, I will write, draw, okay, fine. Y equal to e power root 3x. Now this is a composite function, right? E power, this is a function of x. So for composite function, what we are doing? We will write e power root 3x, means we will take this whole term root 3x as x. This we are thinking in mind. So e power x, derivative is e power x. So I have written e power root 3x. Then I will differentiate this part, root 3x. Okay. Now this is e power root 3x. Now this is also a composite function. I will take this 3x as x in my mind. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. So it will become 1 upon 2 root 3x into d by dx of 3x. You can use chain rule also, but then it will be little lengthy. So we are using directly how to solve the composite function. So 1 upon 2 root 3x into derivative of 3x is what? Derivative of 3x is 3. So your final answer is 3 upon 2. Then in denominator we have root 3x, and in numerator we have e power root 3x. Now if you see this 3 and this root 3, we can cancel. So what we will get? We will get in numerator as root 3 e power root 3x, and in denominator we will get 2 root x. So this is my derivative dy upon dx. Simple. Everyone understood? Second problem, if we see y equal to cos root 3x. So second problem, if we see, second is y is equals to cos of here root 3x, right? Cos of root 3x. Now these problems are coming for 1 marks only. Y is equals to cos of root 3x. So dy upon dx. Derivative of cos is minus sign. So I will write minus sign root 3x. Now see, this is also a composite function. So I will differentiate dy by dx of root 3x. Means you can add one step more here if you want, right? Instead of differentiating like this, what you can say? You can say that dy upon dx is d upon dx. Here it is cos of root 3x. This will be equals to cos derivative is minus sign. So you will say that minus sign root 3x into d upon dx of root 3x. Then this is minus sign root 3x. Derivative of root 3 is 1 upon 2 root 3 into derivative of 3x. Okay. So finally it is your minus sign root 3x upon 2 root 3x. Here it is 2 root 3x. So 2 root 3x into derivative of 3x is 3. So again in the same way it is minus root 3 sine of root 3x whole divided by
here it is 2 root x. Now, when you are doing this problem for 1 marks in your exam, it is not necessary that you write all these steps and one single step you can solve. How in one single step you can solve? Here it is y is equals to cos of root 3x. Okay. So when you differentiate dy upon dx, the derivative of cos is minus sign, so you write minus sign root 3x. Then derivative of root 3x is 1 upon 2 root 3x. Then derivative of 3x is 3. So in one single step, you सर can get the answer. हाँ जी, आपने ये √3 क्यों लिखा? √3 आएगा ना ऊपर। कहाँ पर cos 3x है क्या प्रॉब्लम है? cos ऑफ रूट थ्री लास्ट एक्स है लास्ट ना? में लास्ट। हाँ तो बोलो कहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये रूट 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये सर ये न्यूमरेटर में यहाँ 3 3 है। आया और यहाँ √3। हाँ रूट 3 है तो 3 अपॉन रूट 3 क्या होता है? व्हाट इज 3 अपॉन रूट 3? 3 अपॉन रूट 3 इज रूट 3. Okay. So 3 divided by root 3 is root 3. Therefore, I have written root 3 in numerator. Then sin root 3x and in denominator I have written 2 root x only. तो यहाँ से 3 हम हटा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर यूज कर लिया. Okay, right. So this is your dy upon dx is minus 3. You can write minus 3 sin root 3x upon this is 2 root 3x. Now, these kind of questions generally come as multiple choice question. So, you will get options. Now, sometime you will get this as option, sometime you will get minus root 3 sine root 3x. This as option. So, you have to simplify accordingly whatever is given in the option. Okay. This is your dy upon dx. So, this is second question we have done. Now, third question, if fx is x plus 1, find d by dx of f of x. Now, fx is, third question is fx is x plus 1 and we have to find d by dx of f of x. So, what we will do? We will first find what is f of x. So, what is f of x? F of x is nothing but f of x, right? So you will get f of x means in place of x, what we are writing fx. So here also in place of x, we will write fx. So it will become f of x plus 1. Now f of x plus 1. Again, the value of f of x is x plus 1 plus 1. So it becomes x plus 2. Now you have to differentiate. So therefore, derivative d upon dx of f of x is d upon dx of x plus 2. Now derivative of x plus 2 is what? 1. So you got the answer. Third question done. Right? Now fourth question. fx is x plus 7. gx is x minus 7. So fourth question, third, then fourth question. Fourth question is सर fx. सर एक्स का हाँ, डेरिवेटिव 1 होता है ना? x का डेरिवेटिव 1 होता है. हाँ. और t-4 का? t minus 4. हाँ, जैसे अगर x विथ इक्वल्स रिस्पेक्ट टू t-4 है, अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो x कौन सा का प्रॉब्लम कर रहे हो? 11th वाला अच्छा बुक का डिफरेंस। कर रहे हो क्या? देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जरा बताओ यही है क्या? x इक्वल टू आपको क्या दिया है? t माइनस 4 दिया है. हाँ हाँ तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू t होगा. dx अपॉन dt आप निकालोगे तो dx अपॉन dt आपका 1 होगा. विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो. समझा नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो ना, आपका वेरिएबल t है ना. तो जैसे तो x को सर डिफरेंशिएट करते हैं 1 होता है, वैसे t को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू t. तो t आपका वेरिएबल है. तो t मीन्स t पावर 1. तो t पावर 1 का 1 इंटू टी पावर 0. टी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. 1 इंटू 1 इज 1. तो t का डेरिवेटिव 1.
सर हाँ, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 क्या होगा? साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। साइन हम्म, थीटा प्लस पाई बाई 4। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 दोनों क्या होता है? 1/√2 होता है। तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। ये तुम्हारा साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 है। fx is x plus 7, gx is x minus 7. fx is x plus 7 and gx is x minus 7 and हमको differentiate करना है dy dx of FOGX. So again this problem is simple. Okay. First you find what is FOGX. FOGX is nothing but f of g of x is equals to, in place of x I am replacing gx, so here it will become g of x plus 7 and the value of g of x is x minus 7 plus 7. X 7 will cancel and I got x. So FOG of x is x. So therefore d upon dx of FOGX is what? Derivative of x is 1. So here problem number, this is your problem number 4. And last problem number is 5. Y is equals to x mod x. Problem number 5. सर Y is equals to x. हाँ बोलो. सर जैसे अभी मुझे मिला 2/3 t⁻³ अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जो 2/3 था वो 3/2 हो जाएगा ना। तुमको वापस से बोलो क्या मिला तुमको? मुझे जैसे मिला t⁻³ हाँ अपॉन 3/2। अभी इसे बराबर. हाँ सॉल्व करेंगे तो टू हाँ अपॉन थ्री टी हाँ. 3/3/2। अभी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 t 3/2 मिलेगा ना। इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो रेसिप्रोकल कर रहे हो तो तुम्हारा 3 ऊपर गया और ये हाँ t न्यूमरेटर में है तो 2t⁻3/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ऐसा माइनस साइन नहीं लगेगा ना। माइनस साइन लगाना है ना तो 3/2 t⁻−3/2 करके भी लिख सकते हो. ये भी ठीक है. ठीक है सर। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो जो पावर है वो पावर चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस. प्लस का माइनस। ठीक है सर। थैंक यू सर। या ओके. फिफ्थ प्रॉब्लम है आपका y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स. y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स. यहाँ पर फॉर x लेस देन 0 हमको क्या करना है? dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है. dy अपॉन dx ये हमको फाइंड आउट करना है when x is less than 0. So when x is less than 0 I will redefine this problem. Y is equals to, first of all when x is greater than 0 so it will be x into x for x greater than 0. Both the values will be positive. Here also I am getting the positive result. So this is y equal to x square for x greater than 0 and this is equals to, when it is less than 0 then in that case what happens? This part is negative, this part is positive and this part is negative. So how I will get the whole result as negative? By using minus sign. Minus of x square I will say when x is less than 0. So when x is greater than 0 the function y is x square and when it is less than 0 the function is minus x square. Now I have to differentiate. So therefore for y for y x less than 0 dy upon dx is d upon dx of minus x square. So minus x square को differentiate करेंगे
तो क्या होगा, -2x होगा. तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फिफ्थ प्रॉब्लम यू हैव डन. सर ओके, तो सर y इज इक्वल टू x mod x है, तो आप पहले उसको रिडिफाइन कर लो. हाँ बोलो सर बच्चे. जैसे अभी मुझे इंटीग्रेट करना है t² - 4, तो अभी हम लोग लिखेंगे t², मतलब t-4, सॉरी t-4, तो इंटीग्रेट करने के बाद t² और -4 एज अ वो मतलब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. -4t हो जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हो ना. -4t. हम्म. हम्म. t-4 था सर मेरा, तो इंटीग्रेट करने के तेरा, बाद t² -4t हो जाएगा. हाँ तेरा t-4 था ना, इसको तू हाँ. इंटीग्रेट कर रहा है. ओके, तो t का इंटीग्रेशन t² 4 कैसे हो रहा है, -4 का इंटीग्रेशन 4t प्लस c. अच्छा, थैंक यू सर. धनराज, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम राइट थे. धनराज, यस सर. सारे प्रॉब्लम राइट थे क्या जो किए हमने अभी. सर सर आप देख लो ना. सर अरे बेटा, मैंने अभी इधर सॉल्व किया, तुमने देखा नहीं. मैंने सॉल्व किया, तुमने देखा कि नहीं देखा. धनराज, हेलो धनराज. सर मैं कुछ बोलूं. हाँ तो बोल सुमन. सर अभी सर लिखिए ना, मैं बताता हूँ. हाँ, t² - 2t एक मिनट. t² -2t -2t इंटू -t. इंटू ब्रैकेट बंद है ना, -t. नहीं नहीं, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट ओपन कर दिया है. अरे कैसा अच्छा तूने ओपन किया है. हाँ. t हाँ बोल. स्क्वायर -2t t² -2t. इंटू -t. तो इंटू -t मतलब ये खाली 2t को मल्टीप्लाई हो रहा है. समझा नहीं हुआ. और पावर में है -1/2. तो तू मेरे को जो बेसिक प्रॉब्लम है खाली वो देना, तू सिंप्लीफाई करके मत बोल. तेरा बेसिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर बेसिक प्रॉब्लम. x/√x+4. x/√x √x+4. + 4 क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको. हाँ. हम्म. तो यहाँ पर लेट x + 4 x+4. हाँ. इक्वल टू t. ओके, so हम्म. therefore x become t t minus - 4, 4. therefore dx become dt. हम्म. Okay, so therefore I will be integration of t-4/√t. t-4 upon √t यहाँ पर √t इंटू into dt. dt is हाँ. equals to इंटीग्रेशन. ये t-4 ब्रैकेट में है और ये t पावर -12 है इंटू डी टी. अब क्या? ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एक मिनट t. सर. हाँ. सर मैंने ब्रैकेट ओपन करने के जगह मैंने हम्म. नीचे ही उसे लिखा था 1/2.
जैसे तो फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3/2। हम्म। नहीं 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 नहीं, तेरा तो इंटीग्रेशन में यू अपॉन वी रूल तो चलता ही नहीं है ना, तो तेरा नीचे कैसे रहेगा, तेरे को उसको ऊपर सर लाना ही है। सर ये देखिए मैं दिखाता हूँ कुछ। हाँ दिखाओ। हाँ तो गलत किया है तुमने। देखो तुम ऊपर का इंटीग्रेट कर नहीं रहे हो, नीचे का इंटीग्रेट कर दे रहे हो। और वैसे भी हमने यू अपॉन वी रूल इंटीग्रेशन में किया ही नहीं है, हमने बोला कि यू अपॉन वी रूल होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन तुम डिनोमिनेटर का अलग से नहीं कर सकते, दैट अच्छा, इज अगेंस्ट द रूल। हाँ, आपको तो मतलब स्टैंडर्ड ये फॉर्म जो वाले स्टेप सीखा है। से रॉन्ग है, ये वाले हाँ स्टेप से हाँ, रॉन्ग है। यहाँ पर ये यहाँ तक t-4 अपॉन रूट टी तक ठीक है। उसके आगे तुमने डिनोमिनेटर में टी पावर हाफ है, उसको तुमने टी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 कर दिया, वो गलत है। क्योंकि आप ऐसा बीच में आधी चीज का इंटीग्रेशन कर दोगे, नहीं होगा। मतलब पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पूरा ही इंटीग्रेट करना है, यस। तो ठीक है इसको इस सर। तरह से टी पावर माइनस हाफ ऊपर लेके आओगे। टी इंटू टी पावर माइनस हाफ विल बिकम टी पावर हाफ माइनस 4 इंटू टी पावर माइनस हाफ, ओके, इंटू डी टी। सो दिस विल बिकम टी पावर, ये हाफ का क्या होगा, इट विल बिकम 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 माइनस 4 इंटू टी पावर 1/2, ओके, डिवाइड बाई 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये आपका फाइनली हो गया 2/3 इंटू टी पावर 3/2 माइनस 2 पर गया तो इट विल बिकम 8 इंटू टी पावर हाफ प्लस सी। नाउ टी की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। टी की जगह आपका क्या है, एक्स प्लस 4 है, तो रिप्लेस एक्स प्लस 4। सो इट बिकम 2/3 एक्स प्लस 4 पावर थ्री समझ बाई टू गया। माइनस 8 एक्स पावर 1/2 एक्स प्लस 4, सॉरी एक्स प्लस 4 पावर 1/2 प्लस सी। ओके। सर देखिए, उस सम के बाद रॉन्ग किया ना, तो कितना हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरा सम उसके बाद। हाँ हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा। अत्यधिक। एक्स प्लस 4 पावर 1/2। अपना कॉलेज में इंग्लिश और पी में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वही तो इजी था। 12th का रिजल्ट में पी और इंग्लिश बहुत अच्छा है। का हाईएस्ट 100/100, और इंग्लिश का भी अच्छा है। हाँ, इंग्लिश में भी 100/100, क्या बात है। शुभांगी से क्लास लेनी पड़ेगी इंग्लिश की। उसे पी में 100 मिला है। अच्छा, उसको पी में 100 मिला है, हाँ। सर ऐसा सोचो ना, मैथ्स में अगर आ गया तो किसी को अपने बैच में मैथ से। में भी आएगा 100/100, डोंट वरी। अभी है ना सुमन, तैयारी कर रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी आ सकता। अरे क्यों नहीं, देख ठीक है, फिर भी हाँ 100/100 के लिए तो जर्नी बहुत टफ है, ओके, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सर हम्म। हाँ आप अक्टूबर बाद ये जो कटवा दिया ना कोर्स वो मत करवाना। हाँ क्या सर। बच्चे, हाँ जो पोर्शन रिड्यूस हो गया ना, सचिन बोल रहा है वो मत कराइए आप। मतलब स्कूल से भले अच्छा, ही जो बोल दिया है, तो लेकिन फिर वो हो एक्स्ट्रा जो जाएगा आप। पोर्शन, एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं कराऊँ ना, देखो एक्स्ट्रा पोर्शन के लिए मेरे पास में एक्स्ट्रा तरीका है। व्हाट आई विल डू, मैं जो लास्ट एक्स्ट्रा में। पोर्शन है ना उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। अब वो आपकी इच्छा, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, सर बराबर ना, आप तो हमारा सर तो सर आ एक्स्ट्रा उससे जाएंगे। पोर्शन भी पहले हो जाएगा। सर उससे और पहले आप, आप मैक्सिमा और मिनिमा का बना दीजिए सर। हाँ यार मैक्सिमम मिनिमम ठीक है। अच्छा, ये मैंने वर्कशीट नंबर 3। 3 कर लिया, मैं वर्कशीट नंबर 4 भी सॉल्व कर देता हूँ। तो आज सर बैठ सर के मैं सर यही करता हूँ। हाँ, फोर्थ वाले का आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ वाले का आंसर, तुम सो गए थे क्या जब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा था, तो ऐसा मत किया सर करो। मिल नहीं रहा था, बुक नहीं मिल रहा था जिसमें सोल्व किया था। देखो एफ एक्स एक्स प्लस 7 दिया है, जी एक्स एक्स माइनस 7 दिया है, ओके। डिफ्रेंशिएट करना है एफ ओ जी एक्स हाँ को, हाँ हाँ। तो पहले यस एफ सर, ओ जी सही है फाइंड सही करो। है, वन ही आ रहा है। एफ ओ जी इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स प्लस 7
तो जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस सेवन है, एक्स माइनस सेवन प्लस सेवन, तो सेवन सेवन कैंसिल, एक्स हो गया। तो एफ ओ जी एक्स सेवन एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएट किया तो वन। और फिफ्थ भी यस देख सर। लो, फिफ्थ क्योंकि मॉड हाँ में सर, था, आ गया आ मॉड में, गया, यही आ रहा मॉड है, वाला यही आ रहा है। ओके ना। इसको पहले हमने रीडिफाइन किया और रीडिफाइन करके लेस देन जीरो के लिए डिफरेंशिएट कर लिया। ओके ठीक है। कौन सा वर्कशीट डिस्कस करूँ वो बोलो मेरे को, आई विल ओपन दैट वर्कशीट। लास्ट वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वर्कशीट। फिफ्थ वर्कशीट, हाँ। अच्छा फिफ्थ भी दिया है मैंने, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव दिया है ना। नहीं नहीं, वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ही 5 वर्कशीट था ना, कि 4 था? उसके तो चार वर्कशीट थे। तो सर फोर्थ वाला सॉल्व कीजिए सर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला कर लिए, फोर्थ वाला आप कर दीजिए। हम्म, क्या फोर्थ वाला कर लिए? ये फोर्थ है, फोर्थ वर्कशीट। पहला क्वेश्चन है cos x पावर y इक्वल टू cos y पावर x। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज cos x the whole power y is given cos y power x, and we have to find dy upon dx. Okay, so what we will do here, base is also a function, power is also a function, base is a function, power is a function. So what we will do, taking log on both the side. Log is short form of logarithm, taking logarithm on both sides. So we take logarithm. So when we take logarithm, what we get? We get y, because the property of log, y will come first, y into log of cos x will become x into log of cos y. Now I will differentiate both the sides. So here I will use u into v, here also I will use u into v. So y into d by dx of log of cos x plus log of cos x into d by dx of y. This is equals to, on right hand side, x into d by dx of log cos y plus log cos y into d by dx of x. So first formula लिखा हमने, then this is equals to therefore y into log cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी वन अपॉन cos x, एंड cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x प्लस log ये cos x है, y को डिफरेंशिएट करेंगे सो dy अपॉन dx, ऑन राइट हैंड साइड x इंटू log ऑफ cos y को डिफरेंशिएट किया तो वन अपॉन cos y इंटू cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y प्लस it is log of cos y. This is log of cos y. So I will write log of cos y. So therefore here it is minus tan x into y plus here it is log of cos x into dy upon dx. सर Here it is हाँ सर नहीं नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए, फिर बोलता हूँ। minus tan y into x plus log of cos y. अब राइट साइड में कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ राइट साइड में गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या कोई बताता नहीं है मुझे क्या गड़बड़ हो रहा है? डी अपॉन डी एक्स, तो ये प्लस इधर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पर
बीच में यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है मुझे, हाँ, -10y इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, -10y इंटू एक्स इंटू dy upon dx. Okay. So next step में all dy upon dx term I will write together. So log of cos x plus x into 10y into dy upon dx is equals to, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपका है log of cos y और फिर प्लस y इंटू 10x. Therefore dy upon dx equal to log of cos y plus y 10x divided by log cos x plus x tan y. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि अच्छा हमको सिर्फ dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, उसकी कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. सो यहाँ पर दिस इज अवर रिजल्ट, ये आंसर हो गया dy अपॉन dx. ठीक है सुमन, आस्क मी व्हाट इज योर क्वेश्चन. सुमन लेफ्ट हो गया है, तो हम दूसरा प्रॉब्लम भी कर लेते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम अंडरस्टूड, वी विल सी सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम आपका क्या है, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x. मेरा क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ पूछ, अरे तू लेफ्ट हो गया था, बोल. सर टेल मी. हाँ इधर कौन से स्टेप में मिस्टेक है? कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है. कौन से अच्छा स्टेप में? अच्छा, कौन से स्टेप में मिस्टेक है? 2/3. फिलहाल तो कोई स्टेप में मिस्टेक नहीं है. आंसर नहीं आ रहा है क्या? रॉन्ग है तो पीछे आंसर रॉन्ग है. पीछे आंसर क्या दिया है? पीछे आंसर दिया है, एक मिनट से बताता हूँ. उन्होंने रूट x प्लस 4 को कॉमन निकाला होगा ना. वो मैंने नहीं निकाला. नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा ना. सर इधर तक मेरा आंसर राइट है ना, ये लास्ट स्टेप में? हाँ हाँ पूरा राइट है. रुकिए सर, मैं आपको बताता हूँ पीछे आंसर क्या है. हाँ ये ओके, तो देखिए यहाँ सर, पर पीछे हाँ आंसर ये है. हाँ, तो देखो ना उन्होंने कॉमन निकाला है ना, 2/3. अभी यहाँ पर ना तुम्हारा जो सोल्यूशन है ना मेरे पास में भी है, अभी कुछ समय पहले ही तुम सॉल्व कर रहे थे. हाँ कहाँ गया वो प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम था ना, हाँ ये आया था हमको फाइनली. ठीक है, ये आया था 2/3 फिर -8 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 1/2. तो ये आंसर 1/2 आया का था. मैंने रूट कर दिया. हाँ अभी यहाँ पर ये 2 कॉमन है और x प्लस 4 पावर 1/2 कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर ये 1/3, यहाँ पर x प्लस 4 -2 कॉमन लिया है तो ये 4 और फिर बाद में प्लस c. अब यहाँ पर उन्होंने ये डिनोमिनेटर में √3 भी कॉमन ले लिया, तो √3 कॉमन लेंगे तो 2/3, सॉरी ये 3 को कॉमन लिया, ये x प्लस सर 4. ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. सर मैंने हाँ तो जितना मत तक किया मत उतना लो ना, राइट है ना? मैंने एकदम जितना राइट है. हाँ ये x प्लस 4 माइनस ये 12, ये इस तरह से उन्होंने किया है. तो ये फाइनली हो जाता है 2/3, ये x प्लस 4 पावर हाफ, यहाँ पर ये x -4 - 12 कितना, ये आंसर है पीछे.
एक मिनट चेक करता हूँ। 2/3 x plus 4 पावर हाफ इंटू x माइनस 8। हाँ यही है। हाँ बस सिंप्लीफाई किया उन्होंने। ओके अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके धनराज, धनराज ने सॉल्व किया है। सचिन या फिर अंकुश या फिर सुमन, तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे? ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स और अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो पहले ये ध्यान रखो कि हमेशा वो आपका सिंप्लीफाई होने वाला है। ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan के फॉर्मेट में आने वाला है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला तुमको याद होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। मैंने सारे फॉर्मूले का लिस्ट भी आपको गूगल क्लासरूम पे दिया हुआ है। साइन एक्स का होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। Okay, now this 2 you can cancel, so this will become tan inverse। यहाँ पर एक cos कैंसिल हो जाएगा and you have cos of x by 2 whole divided by sin of x by 2। Now cos upon sin is what? Cos upon sin is cot, so this will become tan inverse cos upon sin is cot x upon 2। Now this cos x upon 2 we can write in terms of tan as tan pi by 2 minus x upon 2, 90 minus theta। So tan inverse and tan we will cancel, okay, and we will get pi upon 2 minus x upon 2। This is the value of y, therefore dy upon dx equal to minus 1 upon 2। ये हो गया आपका डेरिवेटिव, सिंपल। पाई बाई टू ये 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में है। क्या पाई बाई 2, हाँ 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, कॉट थीटा इज tan 90 माइनस थीटा। 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया आपने, ओके। राजेश सर, हाँ जी बोलो। सर यस टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और आगे नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे का मैं सॉल्व करूँगा। और फिर या फिर आप लोग लीव करो, मैं इसको आज यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ एंड देन आई विल पोस्ट। तो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है वो भी देख के सॉल्व करके सबमिट कर देंगे। ओके, सबमिट करना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि आपने कितने वर्कशीट सॉल्व किए हैं, कितने नहीं सॉल्व किए हैं। तो आप जितना पेंडिंग रखोगे, आप सोचोगे बाद में आप बच जाओगे, तो आप नहीं बचने वाले, आपको सबमिट करना ही है। क्योंकि रिकॉर्ड में जब तक आपका सर सबमिट सर होगा नहीं राजेश तब सर, दिखा। हाँ तो ये फिर गूगल क्लासरूम पे रहना मतलब जरूरी है, क्योंकि मैंने तो आपको व्हाट्सएप पे भेजा है ये सब। व्हाट्सएप पे भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है। गूगल क्लासरूम पे रहे ना तो अच्छा है ना, जब अगर हम कोई चीज़ मेंटेन कर रहे हैं तो फिर वो मेंटेन दिखनी चाहिए। तो गूगल क्लासरूम पे दिखेगी कि हाँ ये धनराज है, धनराज ने इतनी बुकशीट सॉल्व की है, ये सुमन है इसने इतनी की है। अदरवाइज वो मुझे अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अभी फिलहाल ठीक है, तुम्हारा तो मैंने मार्क कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा यही करो कि गूगल क्लासरूम पे ही रखो। और मैं भी अलग अलग से दूंगा तो गूगल क्लासरूम पे रखने के लिए हमको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यस अब सर। थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन, किसी को रुकना है देखना है तो देख सकता है। आई एम सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन इज 5 मिनट लगेगा सिर्फ सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। 1 मिनट।
हेलो सर। ओके ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर cos x माइनस sin x है अपॉन cos x प्लस sin x है। ओके, अभी ऐसा कभी प्रॉब्लम आता है, ओके, दिस इज y इक्वल टू, सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर देंगे। सो योर न्यूमरेटर विल बिकम cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय cos x से आपने डिवाइड कर दिया, और ऐसे ही आपका जो डिनोमिनेटर है विच इज cos x प्लस sin x, इसको भी आप क्या कर रहे हो, cos x से डिवाइड कर रहे हो। सो दिस विल बिकम cos upon cos is 1, so this will become tan inverse cos upon cos is 1, so 1 minus sin upon cos is tan, so 1 minus tan x upon it will become 1 plus tan x. Again this is a formula, tan inverse 1 minus tan x upon 1 plus tan x is tan pi upon 4 minus x। आपका ऊपर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ऊपर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। अब tan inverse tan will cancel and finally you will get pi सर सर upon सर 4 सर minus x, so this क्या is your बोला y, आपने? therefore dy upon dx। क्या राजेश सर, बच्चा? हाँ, साइन का क्या कॉन्सेप्ट बताया आपने? साइन करके कॉन्सेप्ट बताया। हाँ, साइन का मैंने ये बताया ना कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, और अगर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है तो पाई बाई 4 प्लस एक्स, ओके सर। राइट। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, थर्ड प्रॉब्लम डन। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, वी मूव टू फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? फोर्थ प्रॉब्लम है y x रूट 1 प्लस वाई प्लस सर, y रूट 1 प्लस एक्स। हाँ, हाँ ये फोर्थ और फिफ्थ तो दोनों तो प्रूव करने वाले हैं ना? नहीं, हाँ फोर्थ वाला प्रूव करने वाला है। तो ये तो मैंने फिफ्थ प्रूव वाला कर प्रूफ, दिया था। फिफ्थ वाला प्रूफ किधर करना है? फिफ्थ वाला तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, हाँ हाँ फोर्थ हाँ हाँ, वाला प्रूफ करना वो दिया। फोर्थ वाला तो प्रूव कर दिया है, कर दिया था। मैं फिफ्थ वाले का आपको आंसर बता देता हूँ क्या, मैं अभी लीव कर रहा हूँ थोड़ा। है। हाँ, तो आंसर हेलो रहने सर, दो, आंसर में देख लूंगा क्या है। बोलो क्या आंसर है फिर भी तुम्हारा फिफ्थ वाले का? मेरा आंसर आ रहा था 6/√1 - 9x²। ये आपका आंसर आ रहा है हाँ, यस फिफ्थ सर। वाले का? ठीक है ठीक है ठीक है, चलूंगा। यस देख सर, लेता थैंक हूँ यू वो सर, बनाना बाय। कैसे, क्या वो भी बता दो मुझे। एक्स रूट 1 प्लस वाई, तुम्हारा प्रॉब्लम है एक्स रूट 1 प्लस वाई, फिर क्या इक्वल टू है क्या? एक्स रूट 1 यस सर, प्लस यस सर, हेलो सर। वाई रूट 1 प्लस एक्स। हाँ, आप पूछ रहे थे कुछ? प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, मैं बोला इक्वल टू दिस इक्वल टू 0 है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमको प्रूफ करना है कि माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, क्या प्रूफ करना है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा था कि क्या किया था तुमने, यू इंटू वी अप्लाई किया था यहाँ पर। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स इंटू, या फिर स्टेप्स कुछ बताऊं क्या और, मैं आपको, जो मैंने जो स्टेप्स किए थे? यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, देन प्लस यहाँ पर सर मैं क्या बोल रहा रूट हूँ, ऑफ, हाँ पहले हम ये स्क्वायर करके रूट हटा लेते हैं ना, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, नहीं बट ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, प्लस यहाँ पर y इंटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने क्या किया, x, फिर इसका डेरिवेटिव लिया प्लस रूट 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया प्लस y इंटू
1/1 प्लस रूट एक्स 1/2, ये यहाँ पर 2 आएगा ना, ये 2 रहेगा। 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये बीच में प्लस साइन आएगा, रूट 1 प्लस एक्स और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू क्या, इक्वल टू इक्वल टू हमको 0। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये है x अपॉन 2 रूट 1 प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये लिखने के बजाय हमारा जो टोटल डिनोमिनेटर है, ओके, क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है, और बाकी कांस्टेंट टर्म ये, तो यहाँ पर x अपॉन 2 रूट 1 प्लस वाई, और फिर यहाँ पर प्लस रूट 1 प्लस एक्स होल इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी टर्म हम वहाँ ले लेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में रूट 1 प्लस वाई, और फिर ये भी उधर गया है बट माइनस साइन बाहर लिया है, तो y अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये इस तरह से हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो ये होगा x इन प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई होल डिवाइड बाई 2 रूट 1 प्लस वाई। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इक्वल्स टू, चलो जाने दो, लीव करते हैं, वी विल सी ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन अवर नेक्स्ट क्लास, राइट, नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी तकलीफ हो जाएगी, बेटर वी हाँ लीव, सर। नेक्स्ट ना लेक्चर सर, वी वो विल तो सी। मैंने तो कर दिया था और आपने चेक भी कर लिया था वो। हाँ, बट तुमने स्क्वायर करके किया था ना, हाँ हाँ यू हैव हाँ, टेकन मैंने स्क्वायर स्क्वायर नोटिस, करके नहीं करा दिए थे। आई थिंक दैट विल बी बेटर कि हम स्क्वायर कर लें एंड देन फाइंड आउट कर लें, यस, अदरवाइज लॉग यूज करके भी कर सकते हैं, लॉग यूज करके भी ट्राई कर सकते थे, हाँ हाँ, ठीक वैसे है, भी कर सकते। जाने दो, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना, एंड देन वी ओके विल सर। सी। ओके सर। ऐसे भी होगा बट ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो वी विल नॉट डू लाइक दिस, सर हम नेक्स्ट लेक्चर में वो अपना 7.2 कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अभी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम लेके फिर मैं उसके आगे के कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, कितना दिन में वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ओके सर। ठीक है? आज कुछ प्रॉब्लम करके अगर आज लेक्चर है तो आई विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यस सर। प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं, यस, ठीक है, चलो। यस सर, बाय सर।